Hi, hello friends, Jai Hind, and welcome back to the second part of our lesson, Weathering the Storm in Irsama. And we have seen in the last video, the first part of the story, जिसमें हमने देखा था कि प्रशांत who went to Irsama was caught in a storm. It was a heavy rain, heavy flood, and he was caught in his friend's house. He had to stay there for 2 days, surrounded by water from all the sides. और ऐसे condition में they stayed huddled. But what was the thing that was troubling him the most? Yes, and it was the thinking of his family. क्या मेरी फैमिली सुरक्षित होगी? क्या मेरे घर वाले सही हालत में होंगे? क्या मैं उनसे फिर से मिल पाऊंगा? कि क्या मैं फिर से उस मृत्यु के दुख से आहत हो जाऊंगा? These were the questions that were moving like a flood which was outside in his mind as well. Let's continue. Let's see what happens next and how he deals with the situation. Okay? 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years. 2 दिन 2 साल के जैसे लगे. When you sit idly doing nothing, then the time never passes. ऐसा लगता है ऐसे घड़ी का सेल बंद पड़ा हुआ है ना. एग्जाम हॉल में ऐसे होता है ना, जब आप पढ़ने बैठते हैं या लिखने बैठते हैं एग्जाम हॉल में, तब आंसर आते तो पटापट टाइम निकल जाता है. आंसर नहीं आते तो ऐसा लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा. तो सेम थिंग हैपेंड विद प्रशांत. 2 दिन 2 साल के जैसे उसको लगे. The rain ceased and the rain waters slowly began to recede. तो बारिश रुक गई. Ceased, stopped. Okay, and the rain waters slowly began to recede. Recede मतलब to go back. Proceed मतलब to go front. Re दोनों opposite word है. Okay. Prashant was determined to seek out his family without further delay. Seek out मतलब to search out. He was determined to search out his family. उसको फैमिली को ढूंढना था, उसकी फैमिली को मिलना था. Without further delay. But the situation was still dangerous. And his friend's family pleaded with Prashant. Pleaded मतलब requested. उन्होंने request किया प्रशांत से, friend की family ने, to stay back a little while longer. बोला थोड़ा और रुको, जाओ मत अभी, उन्होंने कहा. But Prashant knew he had to go. Prashant had no choice. He was missing his family a lot. और उसको जाना था. He equipped himself with a long, sturdy stick. Long, sturdy, मजबूत लकड़ी उसने हाथ में ली. And then started on his 18-kilometer expedition. 18-kilometer expedition. 18 किलोमीटर था उसका घर, हमने देखा था पहले. और उसने वो जर्नी शुरू की, 18 किलोमीटर की जर्नी. एक्सपीडिशन मतलब जर्नी इन सर्च ऑफ समथिंग, इट इज कॉल्ड एक्सपीडिशन. तो उसने वो जर्नी स्टार्ट की बैक टू हिज विलेज थ्रू द सोलन फ्लड वाटर्स. सोलन मतलब पहले पूरा पानी ऊपर आया था तो उस पानी में से उसने जर्नी शुरू की. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road. It wasn't a simple journey, friends. It was very difficult for him to continue further. तो पूरा पानी भरा हुआ था. ओके, तो वो पानी में से उसको स्टिक के माध्यम से सर्च करना पड़ता था कि कहाँ पे डीप है, कहाँ पे शैलो है, ऐसा लगा के देखना पड़ता था. He constantly had to use his stick to locate the road, to determine where the water was most shallow, because he had to go to the shallowest water. तो कहाँ शैलो है, कहाँ कम गहरा है, वो ऐसा करके चेक करके देखता था.
At places it was waist deep and progress was slow. तो कुछ कुछ जगह पर कैसा था? At places it was waist deep, मतलब तकरीबन यहां इतना तक पानी था. It was very deep and it was very difficult to walk there. And progress was slow. He couldn't move faster. At several points he lost the road and had to swim. तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो रास्ता दिखता नहीं था. He lost the road. और फिर उसको स्विमिंग भी करना पड़ता था, बिकॉज रास्ते के इधर उधर गड्ढे होते हैं, तो मुश्किल हालत में फंसता था, उसको स्विमिंग करके भी जाना पड़ता था. आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 friends of his uncle. तो आफ्टर सम डिस्टेंस, थोड़ा आगे जाने के बाद, ही वॉज रिलीव्ड, फेल्ट रिलैक्स्ड. क्यों? टू फाइंड 2 friends of his uncle. उसके अंकल के 2 दोस्त मिले. Who were also returning to their village. वो भी कहीं तो गए थे. They were also caught there. They were also stranded there. They were also returning back to their village. They decided to move ahead together. It is more the merrier. But actually ये जो more का situation था, it was not for making merry. It was actually for finding their family. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. तो जैसे जैसे आगे जा रहे थे, at that time, the scenes they witnessed, जो चीज उन्होंने देखी, जो उनको आगे देखने को मिल रहा था, they grew, they became more and more macabre. What is the meaning of macabre? Macabre का मतलब होता है something unpleasant, something sad, because of its association with death. जहाँ पे भी कोई डेड बॉडी जाती है, देखो फ्यूनरल के लिए लेके जाते हैं, तो सीन्स बिकम वेरी सैड. मीन्स अचानक से हमको एकदम से ऐसा वी फील कोल्ड वेव, समथिंग कोल्ड ग्रिपिंग अस. जहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी है तो अचानक से एक ठंडक सी महसूस होती है, हमको सैड सा लगने लग जाता है. दैट इज कॉल्ड एज मैकैबर फीलिंग. ओके. दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज. यू कैन इमेजिन द सिचुएशन. ऐसे हर तरफ ह्यूमन बॉडीज, कोई बहता बहता आ रहा है और वो बॉडी को पुश करके आगे निकल के जा रहा है. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव. मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, यू कैन जस्ट इमेजिन. कोई आदमी है, लेडी है, बच्चे, इनकी बॉडीज आ रही है. इट वॉज वेरी टेरिबल. आप हम इमेजिन भी करेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ऐसी सिचुएशन वहाँ पे थी. एंड कैकासिस means dead bodies of dogs, goats, cattle, that the current swept against them as they moved ahead. Current मतलब flow of water, वो लेके आ रहा था उनके साथ. तो dogs were there, goats, cattle, सब थे. Sullen bodies, they are flowing towards them. In every village that they passed, they could barely see a house standing. तो जहां जहां वो जा रहे थे, they could barely see. Barely means hardly. They could hardly see a house standing. पूरा घर, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, ऐसा बहुत कम उनको देखने को मिला. Means the floods had almost caused destruction to almost all houses. Prashant now wept out loud and long. He wept. वो बहुत रोया ये सब देखकर, डिस्ट्रक्शन देखकर. उसका दिल पसीज गया. And he wept loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe.
सो ही वॉज श्योर। जैसे जैसे आगे बढ़ने लग गया, लुकिंग एट द डिस्ट्रक्शन, उसको ऐसा लगा कि उसकी फैमिली इसमें से बची नहीं होंगी, उसकी फैमिली इस डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गई होगी, ऐसा उसको कंफर्म होता जा रहा था, क्योंकि इतने सारे डेड बॉडीज, इतने सारे लोग मरे, मेरी फैमिली कैसे बचेगी, was thinking, and that's why he was weeping loudly and longly. And catastrophe मतलब huge, great destruction. Eventually, means finally, Prashant reached his village. And what was the name of this village? His village name was Kalikuda. आखिर में कालीकुड़ा पहुंच गया. He went to Irsama and he came to Kalikuda. His heart went cold. It's a phrase. Heart went cold. To go cold, इसका मतलब होता है he was very very frightened, very very sad. ऐसे इसका मतलब होता है. And what was the thing that made him sad? क्यों इतना वो दुखी हो गया? Where their home once stood. क्या देखा उन्होंने जिसकी वजह से इस तरह से वो बहुत डर गए? जहां पर उनका घर था, वन स्टूड, देयर वर ओनली रेमनंट्स ऑफ इट्स रूफ. जहां पे घर खड़ा था वहां पे सिर्फ रूफ के रेमनंट्स मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द रूफ ऐसे वहां पे खड़ा था. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट. बिलोंगिंग्स मतलब घर के जो अलग अलग आइटम्स थे, घर की चीजें थी, वो थे वहां पे. They were caught, mangled and twisted in the branches of trees. तो ट्रीज के ऊपर, पेड़ों के ऊपर लटके हुए थे उनके घर के बिलोंगिंग्स. कुछ कपड़ा हो, उसने पहचान लिया कि अपना कपड़ा है, लेकिन वो पेड़ पे लटक रहा है क्योंकि घर पूरी तरह से पानी के नीचे गया था. So he was terribly frightened looking at this. Mangled and twisted on the branches of trees just visible above the dark waters. नीचे पानी, पानी के ऊपर पेड़, पेड़ के ऊपर उनके सब चीजें लटके हुए थे. तो ये देख के प्रशांत को क्या लगा? प्रशांत को लगा कि हे भगवान, अगर मेरे घर की यह हालत है तो घर के लोगों की हालत तो और खराब होगी. दैट्स व्हाई ही वाज वेरी सैड. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. तो उसने सोचा अब मुझे जाना पड़ेगा रेड क्रॉस शेल्टर, वहां पे है क्या मेरी फैमिली, चेक करना पड़ेगा. ही थॉट. अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर. उनकी नानी वहां पे दिखी. वीक विथ हंगर. उनकी नानी जो थी, ग्रैंडमदर, शी वॉज वीक विथ हंगर. शी रश्ड टू हिम, her hands outstretched, her eyes brimming. अब जैसा प्रशांत ने सोचा था उसके फैमिली के बारे में, उसकी फैमिली भी तो सेम सोच रही होगी ना प्रशांत के बारे में. सो उनकी नानी, शी मस्ट हैव लॉस्ट ऑल द होप्स ऑफ सीइंग प्रशांत अगेन. लेकिन जब प्रशांत को देखा तो वो खुद भी बहुत एक्साइटेड हो गई. शी आउटस्ट्रेच्ड हर हैंड, हर आईज वर ब्रिमिंग, दे वर शाइनिंग विथ हैप्पीनेस. प्रशांत को देखकर. इट वॉज अ मिरेकल दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड. तो इट वॉज ए मिरेकल कि ये आया, प्रशांत आया, क्योंकि उनको लगा था कि अब प्रशांत तो गया होगा, क्योंकि इतने दिन हो गए कुछ खबर नहीं है. सो दे हैड गिवन अप ऑन प्रशांत एज डेड, बट दे फाउंड दैट ही वॉज अलाइव. And they were very very happy at this. Quickly word spread and his extended family gathered around him. So word spread, word means news. News spread all around the house. तो सब लोग आने लग गए देखने के लिए कि प्रशांत आया, प्रशांत आया. तो सब लोग जमा हो गए. एक्सटेंडेड फैमिली मतलब उसके दूर दूर के जो भी फैमिली मेंबर्स है सब वहां पे जमा हो गए. And hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group. तो प्रशांत ने anxiously scanned मतलब देखा उसने, the motley, battered group, वो पूरा ग्रुप
जो परेशान है, ट्रबल्ड है, वो सब उसने देखा. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. सब थे, brothers, sisters, uncle, aunt, सब वहाँ पे थे, देखने लग गया. And he heaved a sigh of relief. सब लोगों को वहाँ पे देखकर, जिंदा देखकर उसको अच्छा लगा. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he took charge. अगले दिन सब मिलना वगैरह सब हो गया. अगले दिन he took in the desperate situation in the shelter. Desperate, hopeless situation. बहुत मुश्किल हालत में सब थे. He decided to get a grip over himself. And he decided to get a grip over himself. मतलब take control over oneself. मतलब उसकी दुख, उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ सब भूल जाना और कंट्रोल में लेना. Control all the emotions that he had. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. There were around 2,500 people. पूरा गांव वहाँ पे इकट्ठा हो गया था. And there was deathly grief. मतलब मौत का डर सब पे हावी हो गया था. 86 lives were lost in the village. एक साथ 86 लोग मर गए थे पूरे गांव के. 86 लोगों की डेथ हो चुकी थी. And all were very, very troubled. All the 96 houses had been washed away. 96 houses पूरे के पूरे सब गिर गए थे. It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on a green coconut. खाने को कुछ नहीं था. They had only coconuts. उसी के ऊपर वो जिंदा थे, green coconuts के ऊपर. But there were too few to go around such a tumult of people. तो बहुत कम थे. Such a group of people, large number of people. ऐसे लोगों को वो और ज़्यादा दिन उनके लिए पुरने वाले नहीं थे. The food was insufficient. प्रशांत, all of 19 years का था, decided to step in as a leader of his village. तो सोचा कि चलो अब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं. पूरे विलेज का लीडरशिप उनको करना पड़ेगा. Somebody has to step forward. Whenever we have difficulties, there are two things that happen. Some people go in the home and settle in the shelter. Okay? कुछ लोग ऐसे होते हैं, they take this as an opportunity and that proves their leadership quality. तो यहाँ पर वही leadership quality सामने दिख रही थी प्रशांत की. So in that he saw there was a need of hour. If no one else did, so he stepped in as a leader. If no one else did, अगर दूसरा कोई यहाँ पे लीडरशिप नहीं कर रहा है तो मैं करूँगा, मैं लीड करूँगा, उसने सोचा. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. So organized a group of youths, सब लोगों को जमा किया, group of youths and elders to jointly pressurize the merchant. तो मर्चेंट के पास गए, वहाँ पे जो उनका ग्रुप था मर्चेंट, वहाँ पे जो उनका मर्चेंट था, व्यापारी था, व्यापारी के पास गए और उस व्यापारी को उन्होंने बोला कि आप पार्ट विथ योर राइस, मतलब आपके पास जो राइस है हम लोगों को दे दो. इट इज अ नीड ऑफ विलेज. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली. पहले भी उन्होंने ट्राई किया था लेकिन दे वर नॉट सक्सेसफुल. ओके, तो वो जो व्यापारी था, ही वॉज नॉट रेडी, लेकिन दिस टाइम ही गॉट रेडी. वो देने को तैयार हो गया. सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, मतलब विक्टोरियसली, wading through the receding water with food for the entire shelter. तो they came, waded मतलब to walk with difficulty. पानी में से डक्स वगैरह चलते ना, ऐसा एक पैर रख के, वैसा
वो चलने लग गए, चलते चलते वो आए और सारे शेल्टर के लोगों के लिए खाना लेके वो आए. No one cared that the rice was already rotting. The rice was rotting, पानी में भीगा हुआ था, but nobody cared. चलो जैसा भी है, राइस है ना, खा लेते हैं. They ate. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. सब कुछ गीला हो गया था, फिर भी वो पेड़ उन्होंने जमा किए, लकड़ियां जमा कर दी और वो उससे आग जलाई. और वो आग भी कैसी थी? इट वॉज रिलक्टेंट, मतलब आग लग नहीं रही थी, मुश्किल से आग लग गई, उन्होंने लगाई और फिर भी स्लो जल रहा था, फिर भी उन्होंने राइस पकाया. On which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. 4 दिन में पहली बार उनको पेट भर के खाने को मिला था. 4 दिन में पहली बार उनको राइस मिला और उन्हें पेट भर के खाया. His next task was to organize a team of youth volunteers. अगला टास्क क्या था? To gather the team of youth volunteers to clean the shelter of filth. और पूरी गंदगी पड़ी हुई थी वहाँ पे, उसको साफ करना था. There was filth, dirt, गंदगी थी, यूरिन, लोग वहाँ पे सब विधियाँ कर रहे थे तो वो साफ करना था. वॉमिट, लोगों ने जो भी वॉमिटिंग किया था वो क्लीन करना था. एंड फ्लोटिंग कार्कैसेस, डेड बॉडीज सब फ्लोट करके वहाँ पे आए थे, वो भी क्लीन करना था. एंड टू टेंड to the wounds and fractures of many who had been injured. There were so many people who were injured. उनको wounds थे, fractures थे, उनको ठीक करना. ये step by step उन्होंने काम हाथ में लिया था और ऐसा काम करना उन्होंने शुरू किया. That was how he started working. In the next class we'll see how he did it, whether he became successful in it or not. Okay? See you soon. Jai Hind.